Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and staying safe at home. My name is Ms. Sovia Fiaz and I welcome you in APSEC's online support program round 2 week 8. The content of today's course are unit number 4 first aid. We will do unit number 4. We will do its reading and comprehension, and then we will do exercise questions at the end of the unit. Unit number 4 first aid. We will do the reading comprehension and translation of this chapter. We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance comprises of simple medical techniques, is most critical to the victims and is often life-saving. Any lay person can be trained to administer first aid. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. Now I will translate this first paragraph for you in Urdu. हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है. कभी हमें हादसात पेश आते हैं और हमें चोटें आ सकती हैं. जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा शख्स हमारी मदद करे जो जानता हो कि क्या करना है. ये हंगामी और फौरी मदद होती है. ये वक्ती मदद जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, हादसात में ज़ख्मी होने वालों के लिए नहायत ज़रूरी होती है और अक्सर जान बचाती है. कभी भी आम आदमी को फ़ौरी तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है. ये फ़ौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है. फ़ौरी तिब्बी इमदाद के इल्म में ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक का इल्म शामिल है. In the first paragraph, unwell means बीमार या जो ठीक ना हो. Comprise means मुश्तमिल होना. Timely means बर वक्त. Critical means नहायत ज़रूरी. Layman means lay person means आम आदमी. Unconscious means बेहोश. Assistance means मदद. Technique means महारतें. Victim means ज़ख्मी होने वाले. Equipment means साजो सामान. Life saving means जान बचाने वाली. Carry out means अंजाम देना. Take care means निगहदाश्त करना या ख्याल रखना. Now the first heading, cuts and scrapes. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room, yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. Cuts and scrap means घरेलू ज़ख़म और ख़राशें. घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है. यह लोगों को गैर मुतवक्को हंगामी सूरत अहवाल से नहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है. मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए आम तौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती. हंगामी सूरत हाल के कमरे से मुराद है एमरजेंसी रूम. फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त की ज़रूरत है. मंदरजा झैल हिदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और तमाम ज़ख्मों और ख़राशों की निगहदाश्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं. मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें. ब्लीडिंग मीन्स खून का बहाव. बैंडेज. हैंडलिंग मीन्स निपटने का तरीक़ाकार. डेवलप
तरक्की देना या बढ़ाना, क्राइसिस हंगामा या बहरान, टैकल विद निमटना, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल, स्क्रैप्स खराशें, प्रॉपर मुनासिब, अवॉइड बचना, कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ, टेक केयर एहतियात करना, माइनर मामूली, सेंस शऊर, मैनेजमेंट इंतज़ामात, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को, कॉन्फिडेंस एतमाद, यूजुअली अमूमन, एसेंशियल ज़रूरी, इन्फेक्शन खराबी, गाइडलाइंस हिदायत. The first heading is Stop the Bleeding. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. If they don't, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. Stop the bleeding. खून बहने को रोकिए. मामूली ज़ख़म और ख़राशें आम तौर पर बज़ाते ख़ुद खून के बहने को रोक देती हैं. अगर वो खून को बहने को ना रोक सकें तो साफ़ कपड़े या पट्टी की मदद से हल्का दबाव डालें. मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक दबाव डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म ऊपर को उठा दें. ये देखने के लिए कि आया खून का बहना रुक गया है, इसका मुआयना ना करते रहें क्योंकि ये उस जमे हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे हटा सकता है जो बन रहा है और फिर से खून बहने की वजह बन सकता है. अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता रहे या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें. The meanings of the difficult words. ब्लीडिंग मीन्स खून का बहाव, बैंडेज पट्टी, एलिवेट सतह को बुलंद करना, डैमेज नुकसान, क्लॉट खून का मुंजमद या जमा हुआ कतरा, रिज्यूम फिर शुरू होना, असिस्टेंस मदद, कंटिन्यू जारी रहना, जेंटल हल्का या धीमा, कंटिन्यूसली मुसलसल या लगातार, वोंड ज़ख़म, डिसलॉज निकाल देना या हटा देना, फॉर्मिंग बन रहा, स्पर्ट्स फूट निकलना, कॉज वजह बनना, सीख हासिल करना. The second heading is Clean the wound. Rinse out the wound with clean water. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth, but soap must not use soap and a washcloth, but soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. Clean the wound. ज़ख़म को साफ़ कीजिए. ज़ख़म को साफ़ पानी से अच्छी तरह धोएं. ज़ख़म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ़ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए उसे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें. अगर धोने के बाद गलाज़त और गंध ज़ख़म में मौजूद रहता है तो अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी ज़रात को उठाने के लिए इस्तेमाल करें. अगर ज़रात फिर भी मौजूद रहें तो अपने डॉक्टर से मिलिए. सफाई के बायस इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है. The difficult words and their meanings. Rinse means खूब धोना, soap means साबुन, irritate सोजिश पैदा करना, dirt means गलाज़त या गंध, tweezer means चिमटी, reduces कम करना, tetanus तशन्नुज, risk ख़तरा, still फिर भी, wound ज़ख़म, washcloth धोने वाला कपड़ा, actual असल या हकीकी, डेब्रिस रेशे, पार्टिकल्स ज़रात, इन्फेक्शन ताफ़ुन या ख़राबी, रिमेन मौजूद रहना, क्लीन साफ़ करना. नाउ ओपन पेज नंबर 39 बॉयज़.
The next heading is apply an antibiotic. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The products don't make the wound heal fast, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवा लगाइए। ज़ख़म को धो लेने के बाद इसके ऊपर के हिस्से को तर रखने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की हल्की तह लगाइए। ये प्रोडक्ट्स जरासीम कश क्रीम और मरहम ज़्यादा तेज़ी से ज़ख़म को मुंदमिल नहीं करती, लेकिन वो आपके जिस्म के सेहतयाब करने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद दे सकती हैं। कुछ मरहमों में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में मामूली वरम का बाइस बन सकते हैं। अगर कोई वरम बन जाए तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स: हार्मफुल, नुकसानदेह; थिन लेयर, पतली तह; एंटीबायोटिक, जरासीम कुश, सरफेस, ऊपर का हिस्सा; प्रोडक्ट्स, पैदावार या चीज़ें; हील, ज़ख़म का ठीक होना या मुंदमिल होना; इंग्रेडिएंट्स, अज्जा; अप्लाई, लगाना; अपीयर, नमूदार होना; सर्टन, बाज़; माइल्ड रैश, मामूली ज़ख़म या मामूली वरम; प्रोसेस, अमल या फ़ेल; फास्टर, ज़्यादा तेज़; मोइस्ट, तर या नम; ऑइंटमेंट, मरहम। The next heading is cover the wound. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. Cover the wound means ज़ख़म को ढांपिए। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर दाखिल हो देने में मदद देती है। ज़ख़म काफ़ी भर जाने के बाद इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए इसको हवा में खुला छोड़ देना ज़ख़म के भरने को तेज़ कर देगा। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स: बैंडेज मीन्स पट्टी; हार्मफुल मीन्स नुकसानदेह; बैक्टीरिया, जरासीम; कवर, ढांपना; इनफ, काफ़ी; हीलिंग, शिफा पाना; एक्सपोजर, खुला रहना; स्पीड, रफ्तार। Change the dressing. Change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dirty. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressings or sterile gauze held in space with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. These supplies generally are available at pharmacies. चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें। कम से कम हर रोज़ या जब कभी पट्टी गीली या गंदी हो जाए तो उसे तब्दील कर दें। अगर आपको उस चिमटने वाली मरहम से एलर्जी हो जाती है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, तो उसको तब्दील करके कागज़ की टेप, पट्टी के रोल या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी से ना चिपकने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी बांध लें। ये अशिया आम तौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स: ड्रेसिंग मीन्स पट्टी; एटलीस्ट, कम अज़ कम; डर्टी, गंदा; एलर्जिक, एलर्जी या दवा का मुवाफिक ना आना; इलास्टिक, लचकदार; प्लेस, जगह; अवेलेबल, दस्तयाब; होल्ड, लगा रहना या पकड़ना; रोल, लिपटा हुआ; जनरली, आम तौर पर; वेट, गीला; लूजली, ढीलेपन से। Watch for signs of infection. See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहिए। अगर ज़ख़म मुंदमिल या ठीक ना हो रहा हो या आपको कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, तपिश या सूजन देखें तो अपने डॉक्टर से मिलिए।
नोटिस मीन्स देखना, ड्रेनेज पानी का निकलना, स्वेलिंग सोजन, वॉच मुसलसल देखना, रेडनेस सुर्खी, वार्मथ तपिश, साइंस अलामात, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई। Now we will move on the next part of the lesson, first aid kit. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. फ़ौरी तिब्बी इमदाद की किट। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में फ़ौरी तिब्बी इमदाद का बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें दर्जा झैल तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। फ़र्स्ट एड की किताब फ़ौरी तिब्बी इमदाद की किताब साफ़ तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से किस तरह निमटना है। बैंड एड और प्लास्टर्स। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure the band aid is big enough, else you might get little cuts. Make sure the band aid is big enough that the wound, if not, you should use a dressing instead. इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए मुनासिब हैं। वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह जहाँ कहीं आपको छोटा सा ज़ख्म आ सकता है के लिए सभी शक्लों और साइज़ में दस्तयाब हैं। अगर आप उस जगह कपड़े की पट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस बात की तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी ज़ख्म को ढांपने के लिए काफ़ी बड़ी है। द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ: स्टिकी चिपकने वाले, वुंड मीन्स ज़ख्म, बैंड एड्स इमदादी पट्टी, शेप मीन्स शक्ल, लिटिल कट्स छोटे ज़ख्म, इंस्टेड की बजाय। नेक्स्ट इज़ इलास्टिक बैंडेजेस। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग sprained joints और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ मोच वाले जोड़ों या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए अच्छी हैं। Gauze and adhesive tape. Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. For larger cuts and scrapes, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth and towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. चिपकने वाली टेप और जालीदार पट्टी। बारीक जालीदार कपड़े की गद्दी और चिपकने वाली टेप बारीक जालीदार कपड़े की गद्दियाँ या रोल कपड़े की गद्दियाँ हैं जिन्हें हिफाजत के लिए बराह रास्त ज़ख़म पर रखा जाता है। आपको जालीदार कपड़े की गद्दी को इस जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। हंगामी सूरत हाल में ज़ख़म को ढांपने के लिए एक साफ़ सुथरा कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ़ टी शर्ट और बड़े ज़ख़मों और ख़राशों की सूरत में खून बहने के काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल्स। We have latex gloves, safety pins and tweezers, scissors, latex gloves. Scissors are a pair of scissors is needed to cut the tape and gauze. टेप और बारीक जालीदार कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम स्ट्रेंजर। लेटेक्स दस्ताने पहनना हमेशा अच्छी हिकमत अमली है, ख़ासकर जब आप किसी अजनबी के जिस्म के बहने वाली रतूबतों को साफ़ कर रहे हों। कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन को धूप में झुलसने और जलन को तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन क्लिनिकल थर्मामीटर
analgesic tablets such as aspirin or paracetamol. These are all the things that you need to have in your first aid box. Now we will read the theme of the lesson. First aid means responding to an emergency situation. Accidents happen always unexpectedly, but a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid and procedures. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in general be learned by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. Mandatory means that it is important and essential for us. Now we'll move on to the exercise of the lesson. First is vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. Here is the specialized words and the meanings that you guess what their meaning can be and their original meanings. You can copy it from here. Second part of the exercise is idioms. Write 5 idioms that start with infinitive to. Write their Urdu equivalents to. This is the question given in the exercise and the answer is इंसान ख़ता का पुतला है. To err is human. भैंस के आगे बीन बजाना. To cast pearls before swine. उल्टे बांस बरेली को. To carry coals to Newcastle. एक पंथ दो काज. To kill 2 birds with 1 stone. And the last one is आँखों में धूल झोंकना. To throw dust into one's eyes. These are their Urdu and English versions both. These are the comprehension questions. Answer the following questions. I have given you the answers also. You can copy it from here. I will also give you the notes of these questions so that you can write them on your copy. Here is your written work. Vocabulary page 42 and 43, part B to be done in the notebooks, in the textbooks actually. Part A, C, D to be done on the notebook or on sheets. Note part A and D are given in the above slides. You just have to copy them on your notebooks and learn them. Reading comprehension page 43, 45, part A to be done in the textbooks, part B to be done in the notebooks. Note part B is given in the above slides. You have to copy them on the notebooks and learn them. And the grammar is part E to be done in the notebooks. 10th क्लास जो काम आपको नोटबुक्स या शीट्स पे करने को कहा गया है वो आपने शीट्स पे करना है. जो काम आपको बुक पे करने को कहा गया है, जो बुक वर्क है, एक्सरसाइज बुक पे करने वाली, वो आपने बुक पे ही करनी है. और आपको स्लाइड्स में क्वेश्चन के आंसर्स, थीम, सब कुछ जो भी आपने करना है काम एक्सरसाइजेस का वो बता दिया गया है. आपने जस्ट स्लाइड्स में से देख के और अपना काम कंप्लीट करना है. I hope you have understood the lecture. If there is any problem, you can ask me in the query session.